of 3D geometry. Today we are going to learn distance between the 2 points in three-dimensional and the change which has occurred from 2D to 3D. Let's talk about the formula, distance formula in 2D. This you are already aware of. It is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, right? Now, since we are talking about 3D, so what is the change? So only change is you just have to add the z axis. So the formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square for a 3D geometry question. Now let's apply this formula. Since only this formula is in the syllabus, let's talk about how to do exercise 12.2. So again, the question simple, it is a very simple logic, just one formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. This is the formula which you have to apply. Let's do it for the first one. It is AB, it is under root of, see, the first coordinates will be taken as x1, y1, z1. It doesn't matter कि आप पहले x1, y1, z1 ले रहे हो या सेकंड कोऑर्डिनेट को x2, y2, z2 ले रहे हो. बस ये याद रखना है कि जिसको आपने x1 लिया उसके सारे सबके साथ y1 और z1 आएगा. सिमिलरली जिसको x2 लिया उसके साथ y2 और z2 आएगा. So if I apply the formula, it will be 4 minus 2 whole square plus 3 minus 3 whole square plus 1 minus 5 whole square. So this is the answer for question number 1, which if you will solve, you will get root 20, and which is obviously 2 root 5, children. Similarly, if I apply the same formula in the second one, so it is under root of, again, 2 minus of minus 3, यानी कि 2 plus 3 का whole square, 4 minus 7 का whole square प्लस माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर. जस्ट साइन की गलती नहीं होनी चाहिए, वैसे आप आराम से अच्छे से सब कुछ कर लोगे. सो आंसर इज रूट 43. एंड ऑब्वियसली सिंस डिस्टेंस की बात हो रही है, ये सारे यूनिट्स में होंगे. सो सिंस वी आर नॉट अवेयर ऑफ द यूनिट, सो वी विल जस्ट राइट यूनिट. दैट्स इट. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस, यानी कि प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. सो अगेन दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन. 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64. दिस इज 104 and obviously it is 2 root 26. Similarly, if you will do the fourth part, you will get, let's see the answer, minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 minus 3 का होल स्क्वायर. Again, the answer will be root 20, which is 2 root 5. Again, यूनिट लिखना नहीं भूलना क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वो यूनिट में आएगा. Let's talk about same formula यूज करना है. Now you just have to remember the formula. Let me just not erase the formula and let me erase all the other parts so that you know what has to be done. All right. Now let's move on. Show that the points are collinear. So कोई भी point collinear मतलब, let me show you what is the meaning of collinearity. Collinearity means if I'm taking any points, say A, B and C, all the points should lie in a straight line. Now what do you mean by straight line? Straight line means छोटे कोई भी distance को add करके एक बड़ा distance आना चाहिए. Now obviously छोटा कुछ भी हो सकता है, तो इसको A, इसको B, इसको C ले लेते हैं. तो पहले हम AB फाइंड करते हैं, वो चेक करो क्या आएगा. 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 minus 3 का whole square plus 3 minus 5 का whole square. So this is the value of AB, which will come out to be root 14. Right, children? Similarly, BC find करते हैं, वो क्या आएगा, under root of 7 minus 1 का whole square
प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर. So this is going to be 636, 4 2 का 4 और उसका 16. So root 56. If you want, हाँ yes, let's simplify. root 14 जो है वो तो simplify नहीं हो सकता, लेकिन root 56 simplify हो सकता है 2 root 14 में. Similarly, let's find out AC or CA, howsoever you want to say. So it will be 7 minus 7 plus 2 का whole square प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर. सो ए सी इज गोइंग टू कम एज 9 का स्क्वायर 81, 9 and 36. So under root of 126, which is what 3 root 14. So check करते हैं क्या हमारा ए बी प्लस बी सी सबसे बड़ी जो है वो यही आई है, राइट. सो ए बी प्लस बी सी क्या ऐड होके ए सी आ रहा है, चेक कर लेते हैं. यस आ रहा है. रूट 14 प्लस 2 रूट 14. अगर मैं एल एच एस को करूं, दो छोटी साइड्स ऐड करूं तो मेरे पास 3 रूट 14 आ रहा है, विच इज ऑब्वियसली ए सी. सो यस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, right. So this is my collinearity question. Let's talk about the next one. So I hope collinearity is clear to everybody कि collinearity means क्या होता है कि दो छोटे distance को add करके बड़ा distance आना चाहिए. Let's talk about the third question. Third question, first part, isosceles triangle. Again isosceles में आप sides निकालो और कोई भी दो sides जो हैं वो same आनी चाहिए. So let's calculate AB. It is 1 minus 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 10 का स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 1 2 and 16, right. So under root 18. Similarly बी सी निकाल लेते हैं. ये मैंने अगेन ऑर्डर में लिए हैं ए बी और सी. अगेन लेट्स फाइंड आउट बी सी. तो वो क्या आएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 6 का स्क्वायर. ये तो ज़ीरो ही हो गया. ये आया 3 का स्क्वायर यानी कि इट इज़ कमिंग आउट टू बी 9 एंड दिस इज ऑल्सो 9. तो रूट 8. तो बस फिर तो अब नेक्स्ट साइड फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है. ए बी इज इक्वल टू बी सी. So therefore it is an isosceles triangle, right. All right, let's talk about the next question. Next question third का क्या कहता है कि हमें क्या प्रूव करना है. राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ऑब्वियसली क्या मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल होने का. इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए. अगेन स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड शुड बी इक्वल टू द ग्रेटर साइड. लेट्स टेक दिस एज ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट थे, सिर्फ साइन डिफरेंस है. पी क्यू आर ले लेते हैं. तो जब आप पी क्यू में लगाओगे, अब मैं नहीं लगा रही हूँ, अब आप डायरेक्टली लिखोगे पी क्यू इज कमिंग आउट टू बी रूट 18, राइट. अप्लाई क्यू आर में सेम फॉर्मूला. इट विल कम आउट टू बी क्यू आर विल अगेन कम आउट टू बी रूट 18 एंड पी आर में अप्लाई द सेम फॉर्मूला. इट विल कम आउट टू बी रूट 36. तो चेक करो अगर पाइथागोरस होना है. अगेन स्क्वायर सम ऑफ टू स्मॉलर स्क्वायर्स. आपको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर सबसे बड़ा होता है. तो यानी कि ये आएगा 18, ये भी आएगा 18. 18 प्लस 18 कितना हो गया 36. क्या मैं 36 को पी आर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकती हूँ. सो येस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. एंड हाँ कभी कभी ये भी, अच्छा एक चीज़ और इसमें आपको क्लैरिटी भी दे देती हूँ कि कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा राइट एंगल है. सो पी आर जो है वो है, तो दैट मीन्स इट इज राइट एंगल्ड एट क्यू. सो दैट इज यू शुड नो, राइट. हाइपोटेनस इज पी आर. तो पी कुछ भी हो सकता है, आर कुछ भी हो सकता है, चाहे आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. ऑलराइट, ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. वर्टिसेस ऑफ पैरेललो. आपको पैरेललोग्राम वेरीफाई करना है. तो पैरेललोग्राम के लिए तो बहुत ही सिंपल है. ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए. अगेन इसे ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, इसे सी ले लेते हैं और इसे डी ले लेते हैं. सो अगेन फाइंड कर लेते हैं. तो ए बी फाइंड करते हैं, राइट.
और ए बी जो है, अगर आप अगेन सेम फॉर्मूला लगा दो, ए बी फाइंड कर लो क्या आएगा, ए बी जो है वो 6 आ रहा है। सिमिलरली सी डी भी फाइंड करो, चेक करो सी डी क्या आ रहा है। सी डी भी आपके पास अगर 6 आ रहा है, हाँ इस केस में 6 आएगा। उसके बाद आप क्या फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, चेक करिए बी सी क्या आएगा। बी सी इज कमिंग आउट टू बी √43 एंड देन द लास्ट वन कैलकुलेट डी ए। डी ए भी चेक करिए क्या आएगा, वो भी √43 आ रहा है। सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो यस इट इज अ इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर रोम्बस प्रूफ करना है चिल्ड्रन, सो कभी कभी ये भी आ जाता है, प्रूव इट इज अ रोम्बस। रोम्बस के चारों साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, लेकिन रोम्बस कैन बी दिस थिंग, यू नो, इट कैन बी अ स्क्वायर ऑल्सो। तो उसके लिए डायगनल्स को अनइक्वल प्रूव करना मत भूलेगा, दैट कैन बी अ हॉट क्वेश्चन। ओके, प्रूव दैट द फिगर इज, और बच्चे सारे चारों साइड्स फाइंड करके बोल देते हैं यस इट इज अ रोम्बस, इक्वल प्रूव करके। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट है, सपोज पी एक्स वाई जेड, हमें नहीं पता, एंड इट इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस मीन्स ये पॉइंट है 1 2 and 3 and there is another point R which is 3 2 and -1. The points are equidistant. Now some people, again ये गलती भी बहुत मेजर होती है क्या, कि इक्विडिस्टेंट को बच्चे सोच लेते हैं कि वो मिड पॉइंट है। सो चिल्ड्रन, इक्विडिस्टेंट इज नॉट मिड, मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, द पॉइंट्स हैव टू बी कोलिनियर। तभी मैं बोलूंगी अगर पॉइंट कोलिनियर है तभी वो सिंगल लाइन पे लाई करेंगे, तब हम बोलेंगे कि ये जो है ये इसका मिड पॉइंट है। लेकिन इसमें डिस्टेंस इक्वल है, मिड पॉइंट नहीं है। सो इक्विडिस्टेंट कैन नॉट बी द मिड पॉइंट, बट मिड पॉइंट कैन बी इक्विडिस्टेंट। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट फैक्ट। ओके, अब अगर पी क्यू पी आर के इक्वल है तो ऑब्वियसली पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर होगा। अब आप इक्वेशन फाइंड कर लीजिए, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, क्या आपको दिख ही रहा होगा कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आप वो कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल होता है, दैट इज क्वाइट विजिबल। कैन आई से कि 2 माइनस वाई वाली टर्म तो फुल्ली कैंसिल आउट ही हो जाएगी, राइट और बाकी आप ओपन करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अगेन गलती नहीं करना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं बोलना, राइट। सिमिलरली जेड स्क्वायर प्लस 9 3 2 ज़ा 6z इज इक्वल टू अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस नहीं माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। अगेन चेक करिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो आपकी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो आ जाएगी, दैट इज 4x minus 8z equal to 0. If you can take 4 common, so obviously x minus 2z equal to 0. Right, that's your equation, required equation. All right. All right, last question of the exercise. I'm sorry. Last question of the exercise, देखते हैं क्या कहता है। Again, question number 5, find the equation. अच्छा, again same है, find the set of equation of point P. Again P point हमें नहीं given क्योंकि 3D geometry की बात हो रही है, तो P को ये ले लेंगे। Whose sum of distances from A, यानी कि PA plus PB equals to 10. Again, अगर मैं इसमें यूज करूँ PA plus PB equal to 10, तो इक्वेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। कैन आई डू, रूट बहुत ज़्यादा है तो कैन आई डू शॉर्टकट करें, क्या मैं इसकी स्क्वायर PA इज इक्वल टू 10 माइनस PB कर सकती हूँ, जस्ट अ टाइम सेविंग स्टेप, और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो ताकि रूट हट जाए। सो चेक करिए क्या आएगा, PA स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस PB स्क्वायर माइनस 20 PB। अभी भी जो PB की वैल्यू है, अगर आपको दिख रहा है
पीबी की वैल्यू अभी भी अंडर रूट में आएगी, होल स्क्वायर सारे उधर ले जाओ. सो कैन आई से 20 पीबी इक्वल्स टू 100 प्लस पीबी स्क्वायर माइनस पीए स्क्वायर. राइट चिल्ड्रन? सो पहले वैल्यू पुट करते हैं. पीबी चेक करो क्या आएगा, इधर लिख दो. पी ए विल बी अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 x y माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस z माइनस 0 z स्क्वायर. सिमिलरली पी बी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस माइनस यानी कि प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. पुट द वैल्यू. पी बी क्या है, पी बी है अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 100. PB square is what, x plus 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस PA, तो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. चलो अब सिंप्लीफाई हो जाएगा. राइट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि फिर मैं आपको लास्ट स्टेप बता पाऊँ कि रूट फिर दोबारा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा. 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 टू ज़ा 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टू ज़ा 8x. राइट एक्स स्क्वायर कैंसिल, 16 कैंसिल, सो कितना आ गया 100 प्लस 16x. अब अगर चाहो तो 4 कॉमन लेके कैंसिल हो सकता है. राइट इफ आई टेक 4 कॉमन, सो अंदर क्या रह जाएगा 4 टू ज़ा 8 20 प्लस 2x. कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार लास्ट बार. ट्वेंटी पीबी उधर चला गया, 100 पीबी स्क्वायर. ऑल राइट सो we are getting let's just check. 8 प्लस 8 16 आया, ठीक है. 100 एज इट इज रहा. और यहाँ 20 रहा. ओ 25, भाई मैं सोचो कुछ तो गलती करी है हमने. और 4 कॉमन लिए तो 4 4 ज़ा 16 और कॉमन तो आ ही नहीं सकता. करेक्ट, अब करेक्ट है. नाउ एक बार और स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी. आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एक और रूट है. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा 25 x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 4x का होल स्क्वायर. ओपन करिए 25, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 टू ज़ा 8x. राइट सिमिलरली इधर ओपन करते हैं, दैट इज 25 यानी कि 625, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस क्या आएगा this is 20 and then it is 200x. Now take everything, open the bracket, 25x square minus 16x square plus 25y square plus 25z square plus this is 16 into 25
that is 400 plus 25 into 8x, that is 200x minus 200x minus 625 equal to 0. सो 200x कट गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है लेकिन घबराइएगा मत, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, z स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है, एंड इनमें से दोनों माइनस 225 इक्वल टू 0. सो आइदर यू कैन, this is your final answer. All right, so this is all about 3D geometry. अब आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 3D, क्योंकि 3D ज्योमेट्री में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही सिलेबस में है. आगे ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. सो दिस एक्सरसाइज, दिस इज कैंसल्ड. देन अगेन दिस कंप्लीट, I think this complete exercise, yes, it is completely 12.3 is cancelled. आपको पैरेललोग्राम शो करना है, बट इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम मतलब क्या है कि ऑपोजिट साइड तो इक्वल आएंगी. नॉट अ रेक्टेंगल का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री नहीं आएगा, पाइथागोरस को ओबे नहीं करेगा, राइट. और यहाँ ये भी बोल सकते हो कि डायगोनल्स जो है वो अनइक्वल आएंगे, राइट. सो इट इज़ अ सिंपलर वर्जन. फिर question number 12, find the equation of set of points who same points this and this are equal. again p लेके जैसे मैंने आपको बोला है वैसे आपको स्क्वायरिंग करनी है, राइट. इसमें क्योंकि इक्वल दे दिया है तो एक ही बार में स्क्वायरिंग में हो जाएगा, उसमें सम दिया था तो इसलिए. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स एक्सिस. अब एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, दैट इज 0x0, राइट. इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, सपोज ये a है और p हमें गिवन है 3 माइनस 2 5, और इनका डिस्टेंस यानी कि pa हमें गिवन है 5√2. अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो यानी कि pa स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 यानी कि 50, राइट. गलती नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में. अब अगर फॉर्मूला लगाऊं तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 2, दैट इज 50. अगर आप इसे ओपन करोगे तो आपका जो आंसर है वो सिंप्लीफाई करके बहुत ही आराम से आ जाएगा. सो यू जस्ट सॉल्व इट. 9 नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 2 ज़ा 4y प्लस 25 इक्वल्स टू 50. सो हमारे पास वैल्यूज आ गई, राइट. मतलब इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन आएगी तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा. सो लेट्स फर्स्ट फॉर्म द इक्वेशन की. इक्वेशन जो है वो आई क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है. आगे क्या है, माइनस 12 इक्वल टू 0. सो 12 के फैक्टर्स ताकि 4 आए वो भी हमें पता है. 6y माइनस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. सो y कॉमन, y प्लस 6 एक फैक्टर, माइनस 2 कॉमन, सेम फैक्टर बनना चाहिए तभी आपको पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सही बनाई है कि नहीं. y plus 6 whole common, y minus 2 equal to 0. So answer y is minus 6 and y is equal to 2. क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चिल्ड्रन, सो इसमें डबल आंसर्स आएंगे. या तो ये पॉइंट होगा अगर वो नेगेटिव में है, अगर पॉजिटिव में है तो ये वाला पॉइंट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में. That's question number 4 for you. And the last question of the exercise. Again, the last question of exercise भी little लगता है लेंदी, लेकिन एक्चुअली में नहीं है. P को again x, y, z ले लेना है. PA ये A है और ये B है. वैल्यू पुट करो. स्क्वायर ऑलरेडी है तो रूट आएगा ही नहीं. x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का होल स्क्वायर equals to k square. You just have to find the equation.
इक्वेशन मीन्स कुछ नहीं करना, इसको ओपन करना है क्योंकि एज सच कुछ कैंसिल तो होने वाला नहीं है, सब कुछ ऐड हो जाएगा. सो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 2 6x, वाई स्क्वायर प्लस 4 का 16 माइनस 4 2 8y, राइट. फिर z स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z. फिर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 6y प्लस z स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 2 14y इक्वल्स टू k स्क्वायर. अब आप जब इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, वो तो दिख ही रहा होगा, माइनस 4x, राइट, minus 14y plus 4z equals to k square plus 109. If you want, you can leave it like this. अगर चाहो तो 2 कॉमन लेके उधर लेके जा सकते हो, but that's of no use क्योंकि वो किसी से भी नहीं कैंसिल होगा. So this is all about your 3D geometry chapter. In case you have any doubt, kindly please mention in the comment below. And I have already told you section formula and the midpoint formula is not in your syllabus, so that is why we have left a complete exercise. All right, children, in the next video, let's meet with a new chapter. See you all.